So students, we have completed the chapter of indefinite integration. Now we do the second part, that is definite integration. All right. This is the extension of chapter of indefinite integration. We study the definition. If integration of fx with respect to x is gx plus c, integration of fx with respect to x is gx plus c, then integral fx dx from x is equal to a to x is equal to b. Whenever we are given these limits of integration, this becomes chapter of definite integration. All right. Without limits is indefinite, with limits is definite integration. This is known as the lower limit LL, and x is equal to b is called as the upper limit. All right. We read it this way: integral fx dx from x is equal to a to x is equal to b. This is, we evaluate this as if there are no limits. So what is integral fx dx? Gx plus c. This to be integrated between the upper limit and lower limit, that is x is equal to a to x is equal to b. What we have to do here is replace x by the upper limit, then replace x by the lower limit. That means put x is equal to b, then put x is equal to a. All right. The formula is upper limit minus lower limit. Replace x by the upper limit minus replace x by the lower limit. So when you replace x by b, you will get gb plus c minus, we have to replace x by a. When we open these brackets, we get plus c minus c cancels to give you gb minus ga. This is the only time in this chapter that I will be writing x is equal to a to x is equal to b. Henceforth, I will not write it that way. I will only write a to b. When I write a to b, it means x is equal to a to x is equal to b. X is equal to a is known as the lower limit, x is equal to b is known as the upper limit. Now this is the answer. This answer, there is no constant c, because when we substitute upper limit you get plus c, when you substitute lower limit you get minus c. So there is no constant c. That is why in problems of definite integration we will not add constant of integration. अगर हमने ऐड किया तो भी अपर लिमिट जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो प्लस सी आएगा, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस सी आएगा. इट विल गेट कैंसल्ड. That is why we don't substitute. There is no need of putting constant because it is finally going to cancel only. ये जो आंसर है उसमें c नहीं है, उसमें x भी नहीं है. ये x के जगह पे ही x के बदले b लिखा है और x के बदले a लिखा है. All right. So there is no x in the answer. And number 3. The answer by itself is a constant.
ये आंसर में वेरिएबल एक्स नहीं है, क्योंकि आंसर में वेरिएबल एक्स नहीं है, आंसर बाय इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट. ऑलराइट, द आंसर इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट. सो इंटीग्रल fx dx will be gb minus ga. We have to replace x by the upper limit minus x by the lower limit. It is upper limit minus lower limit. For example, zero to 2 e raised to x dx. What is integration of e raised to x? E raised to x from 0 to 2. First replace x by upper limit, means replace x by 2, then replace x by 0 and subtract. तो क्या आएगा? e raised to 2 minus e raised to 0. This answer is a constant. There is no c, there is no x, and answer by itself is a constant. Second, zero to pi by 2 cos x dx. cos x का इंटीग्रेशन है sin x. c लिखने की जरूरत नहीं है. From 0 to pi by 2. Now we'll replace x by the upper limit and x by the lower limit. तो आएगा sin pi by 2 value of sin 90 is 1, sin 0 is 0, so 1 is the answer. As you can see for yourself, the answer is not containing c. The answer is not containing c, answer is not containing x, and answer by itself is a constant. This answer is a constant. All right. So the chapter of definite integration, first part is just the extension of indefinite integration. Indefinite integration में जो किया है वही करने का. आंसर आ जाने के बाद पहले जहां x है वहां अपर लिमिट, माइनस जहां x है वहां लोअर लिमिट, c ऐड करने की जरूरत नहीं है. All right. This is the introduction of the chapter of definite integration. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन का टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, 8. उसमें से 4 हम अभी करेंगे. ऑलराइट, और बाकी का 4 जो है वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में करेंगे. ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी इजी. ऑलराइट, एंड नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम. इसका प्रूफ जो है वो एक्सट्रीमली इजी है एंड इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम. फर्स्ट प्रॉपर्टी, integral from a to a fx dx is 0. The meaning is whenever the lower limit and upper limit are same, the value of definite integral becomes 0. Whenever the lower limit and upper limit are same, the value of definite integral becomes 0. अब ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, उसके लिए मैं बता रहा हूं. ये प्रॉपर्टी का यूज कभी आने वाला नहीं है. ऑलराइट, लुक हियर, विल से लेट
integral fx dx is gx plus c from a to a. Now we'll replace x by the upper limit minus x by the lower limit and subtract. तो क्या आएगा, g of a plus c minus again g of a plus c. So we get this is property 1 ka proof. This is too easy, never asked in the exam. All right, whenever the upper limit and lower limit are same, the value of definite integral becomes 0. All right, this is property 1. Now property 2. What is the lower limit a? What is the upper limit b? ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनको इंटरचेंज किया है, अदल बदल. लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट एंड अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट. देन आगे माइनस साइन आएगा. ऑलराइट, सो अगेन whenever you want to interchange the limits a to b में से अगर b to a करना होगा तो आगे माइनस साइन आएगा. a to b में से अगर b to a करना होगा तो आगे माइनस साइन आएगा. अगेन वी लुक एट द प्रूफ. लेट इंटीग्रल fx dx be gx plus c. We take up the LHS. This will be पहले जहां x है वहां अपर लिमिट, x के जगह पे b सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर x के जगह पे a सब्सटीट्यूट करेंगे एंड सबट्रैक्ट. तो क्या हो जाएगा, c गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट gb माइनस ga. दिस इज LHS का सिंप्लीफिकेशन. नाउ RHS. RHS is minus of b to a. This will be minus, will remain as it is. What is integral fx dx? Gx plus c from b to a. So first replace x by a, then x by b and subtract. तो क्या होगा, c and minus c gets cancelled. When you open the brackets, this minus into minus will become plus and minus ga. So we get LHS equal to RHS. So whenever we want to interchange the limits from a to b, अगर we want to take b to a, we have to put a minus sign. ये हमारा जो पहला दो प्रॉपर्टी है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में जो डिटर्मिनेंट्स किया था उसके जैसा है. डिटर्मिनेंट्स में था whenever two rows are equal, the value of determinant is 0. Whenever two rows are equal, value of determinant is 0. Similarly, whenever the upper limit and lower limit are same, the value of definite integral is 0. फिर हमने वहां पे प्रॉपर्टी किया था that when you interchange two rows, alright, of determinant, आगे माइनस साइन आता है. When you interchange two rows,
आगे माइनस साइन आता है. सिमिलरली व्हेन यू इंटरचेंज अपर लिमिट विथ लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट, तो आगे माइनस साइन आएगा. दिस इज प्रॉपर्टी 2. नाउ प्रॉपर्टी 3. Integral from a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx. मतलब a to b को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, a to c, c to b. a to b को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, a to c, c to b, प्रोवाइडेड ये जो कॉमन लिमिट है, जो एक जगह पे अपर लिमिट है और दूसरी जगह पे लोअर लिमिट है, ये जो कॉमन लिमिट है दे लाई बिटवीन a एंड b. ये जो कॉमन लिमिट है c, दैट शुड लाई बिटवीन a एंड b. अगेन LHS इज द सेम ओनली. ये LHS का कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा. इंटीग्रल fx dx फ्रॉम a टू b, gx प्लस c फ्रॉम a टू b. पहले x के जगह पे b, फिर x के जगह पे a. ऑलराइट, so GB minus GA. Now RHS. RHS is two limits here, two integrals. Only difference being यहां पे C के जगह पे K लिख देंगे क्योंकि C ऑलरेडी इन्वॉल्व है. What is integral fx dx? Gx plus k from a to c and gx plus k from c to b. अब पहले जहां x है वहां c लिखेंगे, फिर जहां x है वहां a लिखेंगे. सिमिलरली इधर पहले b लिखेंगे और फिर c लिखेंगे. ऑलराइट, सो क्या आएगा? GC प्लस के माइनस GA माइनस के. पहले x के जगह पे C, फिर x के जगह पे A, इधर x के जगह पे B माइनस x के जगह पे C. तो ये प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के प्लस GC माइनस GC गेट्स कैंसल्ड. क्या आएगा फिर से? GB माइनस GA. दिस इज द RHS. अगेन therefore LHS is equal to RHS. The meaning of this is, if you have limits as 0 to 5, you can split it as 0 to 5 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to 2, 2 to 5. 0 to 5 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to 2, 2 to 5, या 0 to 3, 3 to 5, या 0 to 4, 4 to 5, या 0 to 2.5, 2.5 to 5. Any number between 0 and 5 will do. लेकिन we can't write. This is wrong because 8 does not lie between 0 and 5. We can't write 0 to 8 and 8 to 5. All right, this is wrong.
द कॉमन लिमिट, व्हाट इज द कॉमन लिमिट हियर? 3, जो एक जगह पे अपर लिमिट है और एक जगह पे लोअर लिमिट है, जो कॉमन लिमिट है दैट मस्ट लाई बिटवीन द अदर टू लिमिट्स। 0 to 5 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ऑलराइट, नाउ इसका उल्टा भी ट्रू है। वी कैन राइट 0 to 3 प्लस 3 to 5, 0 to 3 plus 3 to 5. We can combine and write 0 to 5. 0 to 3, 3 to 5 can be combined as 0 to 5. Alright? Again, it is implied that दोनों में फंक्शन fx ही रहेगा। Obviously तो ही combine कर सकते हैं। Alright? 0 to 3 fx dx plus 3 to 5 fx dx रहेगा, तो उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 0 to 5। जो कॉमन लिमिट है वो वैनिश हो जाएगा, कॉमन लिमिट 3 जो है वो चला जाएगा एंड 0 to 5 आ जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी 3। दिस विल बी हेल्पफुल इन डूइंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नंबर 4, प्रॉपर्टी 4। Property 4. This is property 4 now. Integral a to b fx dx is a to b fy dy is a to b ft dt. The meaning of this property is as long as the limits a to b remain a to b, as long as the limits a to b remain a to b and the function f remains same, then अंदर वेरिएबल चाहे x होगा या y होगा या t होगा, the answer of definite integral remains the same. a to b fx dx is a to b fy dy is a to b ft dt. For example, अभी हमने ये इंटीग्रल कैलकुलेट किया था 0 to pi by 2 cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन है sin x from 0 to pi by 2. This will become अब मैं लिमिट सेम रख रहा हूं, लिमिट्स इधर 0 to pi by 2 है, इधर भी 0 to pi by 2। फंक्शन cos सेम रख रहा हूं, सिर्फ x के जगह पे y लिखूंगा। दोनों में लिमिट सेम है, दोनों में फंक्शन सेम है। लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट है। x के जगह पे y है। लिमिट्स 0 to pi by 2 का 0 to pi by 2 ही रखा, फंक्शन cos का cos ही रखा, सिर्फ यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल y है। ऑलराइट, तो व्हाट इज cos x का इंटीग्रल? sin x। सिमिलरली cos y का इंटीग्रेशन आएगा sin y। जैसे cos x का sin x आएगा, cos y विथ रिस्पेक्ट टू y sin y आएगा फ्रॉम 0 to pi by 2। नाउ पहले जहां x है, सॉरी जहां y है वहां pi by 2, फिर जहां y है वहां 0, तो क्या आ जाएगा? फिर से sin pi by 2 माइनस sin 0। आंसर रिमेन्स द सेम। तो कब आंसर सेम रहता है? जब लिमिट्स a to b रिमेन a to b, a to b रिमेन a to b एंड फंक्शन f रिमेन सेम। तो अंदर वेरिएबल चाहे x होगा
या y होगा या t होगा या r होगा या s होगा, वेरिएबल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस जब तक two things remain the same, the limits of integration and the function a to b should remain a to b and function f should remain the same. Then we say that variable does not make any difference. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LDNM का मतलब लेटर डज नॉट मैटर. वेरिएबल चाहे x होगा या y होगा या t होगा, द आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल रिमेन द सेम व्हेन टू थिंग्स, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन द सेम एंड द फंक्शन रिमेन्स द सेम. अगर लिमिट चेंज हुआ तो आंसर बदल जाएगा, फंक्शन चेंज हुआ तो भी आंसर बदल जाएगा. लेकिन अगर लिमिट्स और फंक्शन सेम रहता है तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल रिमेन द सेम. उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेटर डज नॉट मैटर. ऑलराइट, तो ये चार प्रॉपर्टी. ऑलराइट, अगेन इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ. ऑलराइट, let us start with type 1 problems of type 1. In this type 1 we have to just integrate by using our normal integration methods and just substitute upper limit and lower limit. ये प्रॉब्लम प्रूव दैट के फॉर्म में है. इंटीग्रल 1 to 9 x plus 1 upon root x is equal to 64/3. we take up LHS. इसको स्प्लिट कर देंगे. x upon root x will become root x. This root x means ये x को लिख सकते हैं root x into root x. One root x will get cancelled. ये x को लिख सकते हैं root x into root x. One root x will get cancelled. ये रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू हाफ. नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन. सो एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू हाफ का एक्स रेस टू हाफ प्लस 1 एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 और 1/√x का हो जाएगा 2√x फ्रॉम 1 to 9. 1/√x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव ऑलरेडी. ऑलराइट, सो दिस विल बिकम पहले जहां x है ये x रेस टू 3/2 को ये x रेस टू 3/2 को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. ये 3/2 को 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं और x रेस टू हाफ जो है वो रूट एक्स हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं x रूट एक्स. x रेस टू 3/2 को x रूट एक्स लिख सकते हैं. अब पहले जहां x है, जहां x है वहां 9 लिखेंगे. जहां x है वहां 9 लिखेंगे. फिर जहां x है वहां 1 लिखेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
So this will become लोअर लिमिट में साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो जब x के बदले 1 लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा. दिस विल बिकम 2 3s are 6, 6 into 3, here 2 into 3, here 2 by 3 into 1 and minus 2. So this will become 18 plus 6 24 minus 8 upon 3. This will be 22 minus 2 upon 3. ये 6 3s are 18, 18 plus 6 24, 24 minus 2 22. Take LCM, will get 66 minus 2 upon 3. The answer will be 64 by 3, which is the RHS. Therefore, the value of this integral 1 to 9 will be 64 by 3. अब यहां तक का जो इंटीग्रल है वो हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है. सिर्फ लास्ट का 2-3 स्टेप है, उसमें सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है. द आंसर इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट. आंसर में सी हमने लिखा ही नहीं है. इंटीग्रेट करने के बाद सी लिखने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, नाउ कम टू प्रॉब्लम 2. सेकेंड क्वेश्चन. Zero to pi by 4 cot square x dx will be 1 minus pi by 4. I think there is a correction here. It should be pi by 2 to pi by 4. Then I think the answer will come. We have studied in our indefinite integration that to integrate tan square theta we have to replace it by sec square theta minus 1, and to integrate cosec square theta we have to replace it by cosec square theta minus 1. जहां tan square theta है sec square theta minus 1 लिखने का, और जहां cot square theta है cosec square theta minus 1 लिखेंगे. तो ये जो cot square x है उसकी जगह पे cosec square x minus 1 लिख देंगे. दिस विल नाउ बिकम cosec square का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x एंड 1 का इंटीग्रेशन होगा x. cosec square x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, 1 का इंटीग्रेशन होगा x फ्रॉम pi by 4 to pi by 2. So this will become minus cot pi by 2 minus pi by 2. पहले जहां x है वहां x के जगह पे पाई बाई 2 अपर लिमिट लिख देंगे, और लोअर लिमिट में साइन चेंज हो जाएगा.
सो माइनस का प्लस हो जाएगा cot पाई बाय 4, अगेन माइनस का प्लस हो जाएगा पाई बाय 4. वैल्यू ऑफ cot 90 इज 0, माइनस पाई बाय 2, cot 45 is 1 and plus pi by 4. So this will become 1 minus pi by 4. Value of integral I will be 1 minus pi by 4. All right, the answer should also be 1 minus pi by 4. There are some mistakes in the government textbook which we are rectifying. All right, the answer should be 1 minus pi by 4, not minus of 1 plus pi by 4. cot स्क्वायर के जगह पे cosec स्क्वायर माइनस 1, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot, पहले x के जगह पे पाई बाई 2 लिखेंगे. ऑलराइट, ये 90 है, माइनस 90 में 45 ऐड करेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा. ऑलराइट, ये दोनों को कंबाइन किया है, minus 90 and plus 45 will become minus 45. आंसर आएगा 1 minus pi by 4. This is problem number 2. Now problem 3. Problem 3 is, again we have to prove this, minus pi by 4 to plus pi by 4 dx upon 1 minus sin x. आंसर आएगा 2. We again take up LHS. We will rationalize the denominator. ये 1 माइनस साइन एक्स का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 प्लस साइन एक्स, and 1 minus sin x into 1 plus sin x will become 1 minus sin square x. इसको स्प्लिट कर देंगे. This will become what is 1 upon cos square x, sec square x, and sin upon cos will become tan. sin upon cos will become tan, और फिर भी एक cos रह जाएगा तो वो sec x बन जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sec square x का tan x and sec x tan x का sec x. sec square x का इंटीग्रेशन होगा tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x. पहले जहां x है वहां पाई बाय 4 लिखेंगे, फिर जहां x है वहां माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे. रिप्लेस x बाय पाई बाय 4 एंड x बाय माइनस पाई बाय 4. लोअर लिमिट में माइनस आ जाएगा तो आएगा tan पाई बाय 4 प्लस sec पाई बाय 4 माइनस ऑफ tan माइनस पाई बाय 4 माइनस ऑफ sec माइनस पाई बाय 4. This will become tan pi by 4 plus sec pi by 4. Tan of minus theta is minus tan theta.
So we are using two formulas from trigonometry. Tan of minus theta is minus of tan theta. तो ये tan minus pi by 4 minus of tan pi by 4 तो प्लस हो जाएगा. And we know sec minus theta is sec theta because cos minus theta is cos theta. तो sec minus pi by 4 will be sec pi by 4. तो आगे माइनस साइन मेंटेन रहेगा. नाउ ये sec कैंसल हो जाएगा. tan 45 is 1. आंसर आएगा 2. सो वी गेट LHS इक्वल टू RHS. मीन्स ये हमारा प्रूव हो गया. नंबर 4. We have to prove that बाय द वे ये थर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व दिया था नोट्स में. सॉल्व है थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम जो है वो नोट्स में सॉल्व है. ये फोर्थ को हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट. LHS. Again, we have to use your knowledge of indefinite integration. In indefinite integration, we have studied that to integrate cos cube theta, the formula is 3 cos theta plus cos 3 theta divided by 4. हमने ऐसे बोला था कि cos स्क्वायर या sin स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने का. स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में और क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में. तो cos क्यूब का कन्वर्जन है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. तो ये बन जाएगा ये 4 बाहर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा. एंड 3 विल रिमेन एज इट इज cos x का sin x. ये 3 एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x. इधर कोएफिशिएंट 3 है तो आगे डिवाइड बाय 3. सो 1/3 आ जाएगा. एंड sin 3x फ्रॉम 0 to π/2. अब पहले जहां x है वहां π/2 लिखने का, फिर जहां x है वहां 0 लिखने का. तो क्या आएगा? ये 1/4 एज इट इज रहेगा. 3 टाइम्स जहां x है पहले π/2 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे. This will become value of sin 90 is 1, sin 270 is -1. sin 90 is 1, sin 270 is -1. एंड यहां पे ये 0 डालेंगे तो 3 इंटू 0 30 नहीं होगा, 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा. So this will become 1/4, 3 minus 1/3, that is 1/4 times. ये माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस. एलसीएम लेंगे तो 9 minus 1 8/3. ये 4 and 8 कैंसिल होके 2 आ जाएगा. आंसर आएगा 2/3. That is the RHS. So again we prove LHS is equal to RHS. Question number 4. Now question 5. Again, for doing this type 1 problems, this conversion should be known to you.
जब तक ये नहीं मालूम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पॉसिबल है. ऑलराइट, ये मालूम होना जरूरी है. नंबर 5, prove that 0 to pi by 4 0 to pi by 4 sin 4x into sin 3x is equal to 4 upon 7 root 2. Again, this is important. LHS. This is like sin A into sin B. This is like sin A into sin B. अब इंटीग्रेशन में जब भी साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन आएगा, वी हैव टू अप्लाई डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ऑलराइट, सो टू अप्लाई डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. We'll multiply and divide by 2. Now we use the defactorization formula. The formula is एक बार पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, a माइनस बी. द फॉर्मूला इज 2 sin a sin b is cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी. आगे 1/2 मेंटेन रहेगा एंड द फॉर्मूला इज कॉस ए माइनस बी. दिस विल बी cos x का sin x हो जाएगा एंड 1/7 sin 7x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. पहले जहां x है वहां पाई बाई 4 आएगा, फिर जहां x है वहां 0 आ जाएगा. सो दिस विल बिकम क्या आएगा, हाफ एज इट इज साइन पाई बाय 4 साइन 7 पाई बाय 4 1/7 टाइम्स. पहले जहां x है वहां पाई बाय 4 लिखेंगे, लोअर लिमिट में साइन चेंज, सो माइनस साइन 0 एंड 1/7 साइन 0. दिस value of sin 45 is 1/√2. This value sin 7 pi by 4 will be sin ये 7 pi by 4 को लिख सकते हैं 2 pi minus pi by 4. This is fourth quadrant. 2 pi minus pi by 4. The formula is minus sin pi by 4. Sin of 360 minus theta is minus sin theta. So minus sin pi by 4. That is minus 1/√2. The value will be minus 1/√2.
वी आर यूजिंग साइन 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला. जब भी 180 या 360 होगा तो रेशियो रिमेन सेम, साइन रिमेन साइन ओनली. एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस. तो ये साइन है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा. सो ये वैल्यू होगा -1/√2. साइन 0 इज 0, तो लास्ट का दो टर्म 0 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स 1/√2 प्लस 1/7√2. सो दिस विल बिकम, एलसीएम लेंगे तो 7√2 आएगा. न्यूमरेटर में 7 + 1 दैट इज 8/7√2. 8 और 4 कैंसिल होके 4 आ जाएगा. आंसर आएगा 4/7√2. दैट इज दी RHS. ये 4/7√2 इज दी आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इसके लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मालूम होना जरूरी है कि साइन ए साइन बी आएगा तो हमको अप्लाई करना है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. हर एक डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला में आगे 2 आता है. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. फिर ये फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है. 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. देन वी हैव टू इंटीग्रेट एंड पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. क्वेश्चन 6. Zero to π/2. Sin raised to 4x dx. This is again prove that. आंसर आएगा 3π/16. Even this is important. LHS. ये साइन रेज टू 4 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर का कन्वर्जन है कॉस स्क्वायर का कन्वर्जन है 1 + cos2 θ/2 एंड therefore this will become इसको a - b द होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देंगे. This will be ये कॉस स्क्वायर के लिए ये वाला कन्वर्जन फॉर्मूला आ जाएगा. वन प्लस cos2 θ डबल एंगल हो जाएगा. 2x का 4x एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2 - 4 cos 2x प्लस 1 + cos 4x. सो दिस विल बिकम 1/8 टाइम्स 3 minus this is the simplification of sin raised to 4x
ये साइन रेस टू 4 के जगह पे लिखेंगे 1/8 टाइम्स, ये 1/8 बाहर आ जाएगा और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 3 का 3x, 4 एज इट इज, 1/2 साइन 2x एंड 1/4 साइन 4x फ्रॉम 0 to π/2. So this will become ये 2 and 4 कैंसल होके 2 आ जाएगा. So this will become this will become पहले जहां x है वहां π/2 लिखेंगे, जहां जहां x है वहां π/2 लिखेंगे, फिर जहां x है वहां 0 लिखेंगे. तो क्या आएगा? सिंप्लीफाइड वैल्यू 1/8 3 टाइम्स π/2 2 टाइम्स साइन 2 π/2 विल बी पाई एंड साइन 2 पाई. ये 4 π/2 हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा. 3 इंटू 0 विल बी 0, माइनस का प्लस 2 टाइम्स साइन 0, x के बदले 0 डाल देंगे लोअर लिमिट में, एंड 1/4 टाइम्स अगेन साइन 0. अभी दिस विल बिकम 1/8 3 π/2 माइनस 0 प्लस 0 0 साइन 0 0 अगेन साइन 0 0. ये वैल्यू ऑफ साइन 180 0 है, साइन 360 भी 0 है, ये 0 एज इट इज, साइन 0 0 है. ऑलराइट, ये 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 3 π/16 विच इज दी RHS. सो LHS इज इक्वल टू RHS. दैट प्रूव्स इट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ये 6 जो है वो सॉल्व है. नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है. वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Prove that 0 to 1 x square minus 2 upon x square plus 1 is equal to 1 minus 3 π/4. LHS. ये न्यूमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर का पावर भी 2 है. व्हेन पावर्स आर इक्वल वी डू एडजस्टमेंट मेथड. न्यूमरेटर में ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा. जो टर्म डिनोमिनेटर में वही टर्म न्यूमरेटर में लिखेंगे. ऑलराइट, तो ये -2 के बदले 1 - 3 लिखा. इन प्लेस ऑफ -2 आई एम राइटिंग 1 - 3. इसको स्प्लिट कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होके 1 आएगा और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ये 3 एज इट इज रहेगा एंड 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x हो जाएगा. सो दिस विल नाउ बिकम
पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो जहां x है वहां 1 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, तो जहां x है वहां 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, 1 माइनस 3 tan इनवर्स 1 minus 0 plus 3 tan inverse 0. This will be 1 minus 3 times tan inverse 1 is pi by 4 and tan inverse 0 is 0. तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 minus 3 pi by 4 which is the RHS. So LHS is equal to RHS. Number 8. Question 8. Prove that integral from 5 to 3 dx upon square root of 2x plus 3 minus square root of 2x minus 3 is equal to 1 by 18 13 root 13 plus 7 root 7 minus 3 root 3 minus 27. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये सॉल्व भी दिया हुआ है। No, limits in fact not 3 to 5 but 5, in fact 3 to 5 है, not 5 to 3. लोअर लिमिट 3 एंड अपर लिमिट 5 आएगा। So we rationalize the denominator. ये माइनस का रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ए प्लस रूट बी विल बिकम ए माइनस बी। तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 3 to 5 डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, 3 plus 3 6 हो जाएगा। दिस विल नाउ बिकम ये 1/6 को बाहर ले लेंगे, 1/6 कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउटसाइड। एंड ये रूट को रेस टू 1/2 लिख देंगे। दिस इज 3 to 5 ये 1/6 मेंटेन रहेगा, इधर आगे डिवाइड बाई 2 आएगा, 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड ये x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाई 2 आएगा। अगेन x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाई 2 आएगा। दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, 6 3 18, ये 3 3 ये 3 बाहर आ जाएगा, तो आगे 1/6 का 1/18 हो जाएगा एंड
ये रेस टू 3/2 को 2x प्लस 3 रूट 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 रूट 2x माइनस 3। अब पहले 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहां x है वहां 5 आएगा, ऑलराइट, और फिर जहां x है वहां 3 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1/18। पुट 5 here, 5 plus 2 5s are 10 plus 3, 13 root 13, and this will be 9 minus 3, sorry 5 minus 3, alright, 2 5s are 10, 10 minus 3 will be 7, so 7 root 7। पहले जहां x है वहां 5, 2 5s are 10 plus 3 13 root 13, और जहां x है वहां 5, तो 10 माइनस 3 7 रूट 7। अब लोअर लिमिट में साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 6 प्लस 3 9, सो 9 रूट 9, एंड माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, सो 3 रूट 3, दिस विल बिकम 13 रूट 13, 7 रूट 7, 3 रूट 3, ये रूट 9 जो है दैट इज 3, सो 9 3s are 27, दैट इज द आंसर वी वांट, दैट इज द आंसर वी वांट, दिस इज RHS। So students, in today's lecture we have introduced the chapter of definite integration. We have done 4 properties, all right, and problems 1 to 8 we have done, all right. Next lecture में जब हम मिलेंगे we'll continue further and try to complete type 1, all right. Try to complete type 1, which are problems based on your indefinite integration. Just put upper limit minus lower limit, all right. What you have to do from your side is, before you do the next lecture, that is before you see the next lecture of definite integration, indefinite integration में जितना भी हमने important notes लिखा है, वो रिवाइज करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू नीड इट, ऑलराइट। थैंक यू।